السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد علیہم السلام کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور ملک بھر میں کورونا وائرس کی وبا نے مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 48,091 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں مزید 32 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1017 ہو گئی۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی وبا نے مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 48,091 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں مزید 32 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1017 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 15,346 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 4,29,600 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,193 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 48,091 ہو گئی، جبکہ 14,155 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 32 افراد کورونا کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح ملک میں مجموعی اموات 1017 ہو گئی ہیں۔ سندھ میں 316، پنجاب میں 297، خیبر پختونخوا میں 391، گلگت بلتستان میں 4، بلوچستان میں 38 اور اسلام آباد میں 10 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جہاں مصدقہ مریضوں کی تعداد 18,964 ہے۔ دوسرے نمبر پر پنجاب ہے، جہاں کورونا کیسز 17,282 ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 6,815، بلوچستان میں 2,968 کیسز، اسلام آباد میں 1,235، گلگت میں 589 اور آزاد کشمیر میں 148 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی وبا کورونا پر ہونے والی سیاست نے اب سازشی تھیوریوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں کورونا کے مریضوں کے باوجود یکدم لاک ڈاؤن کو کھولنے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مختلف فورمز پر شہری ان سوالات کے جوابات کے متلاشی ہیں۔ یہ سوالات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کے چھٹے بڑے آبادی والے ملک پاکستان میں بروقت لاک ڈاؤن سے وبا کے پھیلنے کی رفتار کو انتہائی سست کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس میں نرمی کی گئی، وبا نے ایسا سر اٹھایا کہ اب تعداد ہزاروں میں ہے اور خطرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ ماہرین اور شہری لاک ڈاؤن ہٹانے میں عجلت کو ایک ایسی تھیوری سے جوڑ رہے ہیں جس سے کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کے اجتماعی مدافعت پر بیان کے بعد اس پیش رفت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس تجربے کے لیے چنا گیا ہے۔ شاید اسی لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کھول دیا ہے، تاکہ آبادی میں اجتماعی مدافعت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں بیماری کو اجتماعی طور پر پھیلا دیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بہت سارے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ یہ ایک طرح سے دریا میں کود کر تیرنا سیکھنے کے مترادف ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ کیا حکومت نے واقعی ملک کو کورونا کی تجربہ گاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو وبا کے اجتماعی طور پر پھیلنے سے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کمزور ہیلتھ سسٹم والے ملک میں کیا ایسا تجربہ کرنا مناسب ہے؟ کیا اس منصوبے سے پہلے اس کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے؟ کیا ایسے کسی منصوبے کو لاگو کرنے سے قبل ایوان سے اجازت لی گئی تھی؟ کیا پاکستانی شہری ایسے تجربے کے لیے رضامند ہے؟ شہریوں کی جانب سے ایسے کئی سوالات ہیں جو یقیناً حکومت سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا اسپتال پیمز کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی آماج گاہ بننے لگا۔ مریضوں کے ساتھ ساتھ طبی عملہ روزانہ کی بنیاد پر وبا کا شکار ہو رہا ہے۔ اسپتال اسٹاف کو حفاظتی کٹ فراہمی کے دعووں پر سوالات اٹھ گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی۔ وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے اسپتال میں طبی عملے پر کورونا کی وار جاری۔ پیمز اسپتال کے 19 ڈاکٹر کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ 6 نرسز، 2 سینیٹری ورکرز اور عملے کے مزید 16 افراد اب تک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کی کورونا کے سبب حالت نازک قرار دی گئی ہے۔ پیمز اسپتال سے ہوتے ہوئے کورونا نے شہر اقتدار پر اقتدار کی جنگ شروع کر دی ہے، جس کے باعث اب تک اسلام آباد سے 822 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس حد تک کورونا کے مریضوں کی تعداد کے اضافے نے انتظامیہ کی دعووں کی کلئی کھول دی ہے۔ کیا کورونا سے لڑنے والے تمام مجاہدوں کو کٹس کی فراہمی یقینی بنائی گئی؟ کورونا وائرس کا تعلق امیون سسٹم سے ہوتا ہے۔ کیا امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے طبی عملے کو آرام کا پورا وقت دیا جا رہا ہے؟ کیا پولیس کی طرح کورونا کے ہاتھوں زندگیاں ہارنے والوں کے لواحقین کے لیے کوئی الاؤنس کا اعلان کیا گیا؟
कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 999 तक पहुंच गई है। डॉक्टर्स समेत तिबी अमले के कोरोना वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 12 तक पहुंच चुकी है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की जानिब से शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजो को एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत दी गई है। एक तरफ एसओपीज की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं तो वहीं एहतियाती तदाबीर के बगैर अवाम की बड़ी तादाद खरीदारी कर रही है, जिसकी वजह से वायरस फैलने का शदीद खतरा है। इस हवाले से मजीद जाने के ऑन शिराजी से जी ऑन आगाह कीजिएगा, अभी तक एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? जी, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बात करें तो इस वक्त तक 45,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं और 986 अमवात हो चुकी हैं, जो तकरीबन 1,000 के करीब पहुंच चुका है मामला। और रोजाना 1500 से 2,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें तो ना होने के बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद जो है वो शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे तो खोल दिए गए, लेकिन एहतियाती तदाबीर हमें नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कोरोना की एक भयानक शक्ल हमारे सामने आ सकती है और बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन इमरान शाह को कहूंगा कि आपको जरा दिखाएं कि किस अंदाज में सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हम जो है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे बड़े कम लोगों ने, अगर बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने जनाब मास्क पहने हो। बड़ी कम तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने ग्लव्स पहने हुए हो। तो इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आ रही है कि अभी जो है वो इफ्तार से पहले का वक्त है, क्योंकि खरीदारी बाकायदा तौर पर अगर बात करें तो इफ्तार के बाद होती है, लेकिन इस भी बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मौजूद हैं। और एहतियाती तदाबीर की बात करें तो वो हमें इस अंदाज में नजर नहीं आ रही हैं। ये एक जो है वो वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, आपको नजर आ रहा है, जिसके हवाले से ये कहा गया कि जी जब लोग इससे गुजरेंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएंगे। तो इस वक्त हम इसमें मौजूद है। इतनी ज्यादा वो रेशो नहीं है कि जिससे एक शख्स को गुजरते हुए सैनिटाइज एक शख्स हो सके। ये आप देख रहे हैं, आपको इस अंदाज में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जगह जगह में इस तरह का रश जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में बगैर किसी एसओपी को फॉलो किए हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको मालूम है कि ये कितना खतरनाक मर्ज है, लेकिन इसके बावजूद आप कोई एसओपी जो है वो एसओपी पे अमल दरामद नहीं कर रहे। आप जरा बताइएगा, सारे इतना खतरनाक मर्ज है, ना आपने ग्लव्स पहने हुए ना मास्क है, तो ये मतलब आप अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे? मैं पहनने लगा हूँ, बस ये अभी निकाला है। अच्छा, चलें जल्दी पहन लें, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे इतना नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप क्राउडेड प्लेस में हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि इस वक्त यहाँ पे ये सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया यहाँ की सूरत नहीं, हाल नहीं है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बेशतर जगहों पे इस वक्त ये है कि एसओपीज पे उस अंदाज में अमल नहीं किया जा रहा है जिस तरह अमल दरामद करना चाहिए था। बड़ी तादाद में इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, पार्किंग का इशू बना हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जो है एक जमे गफीर हमें नजर आ रहा है लोगों का। एक तरफ ये मामला तो लोगों के रोजे भी हैं और डॉक्टर हज़रात ये बताते हैं कि ये कोरोना सबसे पहले जो है खुशक गले पे असर करता है, ये वहाँ से आगे बढ़ता है। तो लोगों के रोजे हैं और उसके बावजूद लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, बगैर एसओपीज पे अमल दरामद किए, बगैर किसी हिफाजती इकदाम के, जो यकीनी तौर पे बड़ा अगर आप बात करें तो बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। और इस हवाले से यकीनी तौर पे लोगों को बजाते खुद इस मामले को देखना होगा कि किस तरह वो इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। आपको डिफरेंट आप फुटेज मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो भी यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है तो वहाँ पे ही दूसरी जानब कोई प्रॉपर प्रिक्योरमेंट के मेजर्स भी नहीं लिए गए हैं। यानी जैसे हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमें नजर बड़े कम लोग ऐसे नजर आए जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं उनमें से दूसरे जो लोग हैं उन्होंने जनाब ग्लव्स नहीं पहने हुए, क्योंकि अगर आप बात करें तो जब कोई एक कोरोना से इन्फेक्टेड शख्स किसी एक चीज को पकड़ेगा और वो कोई खातून किसी
कपड़े को पकड़ती है यानी खरीदने के लिए देखती है और फिर वो दोबारा वहीं पे उसे रख देती है और दूसरी खातून आके उसे उठाएगी तो यकीनी तौर पे वायरस उस पे मौजूद होगा। तो इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अवाम शायद कोरोना से डर नहीं रही बल्कि कोरोना को डराना चाहती है और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर ये चाहते हैं कि कोरोना उनसे डर के जो है भाग जाए, लेकिन शायद ये खाम ख्याली है। कोरोना इनसे नहीं डरेगा बल्कि ये बीमारी फर्दर फैलेगी और इसका एक नुकसान वाला जो है वो नतीजा सामने आएगा। जी शुक्रिया ओन शराजी। मुल्क भर की मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में रश है। शहरियों ने कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर खुल गए। दिए गए औकात खुसूसन शाम को मार्केट्स और बाजारों में आवाम का सैलाब रहा। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया गया। ताजरों और खरीदारों ने मास्क तक नहीं पहने हुए। दुकानों के अंदर हैंड सैनिटाइजर की सहूलत भी मौजूद नहीं। ताजर भी SOPs पर अमल दरामद की बजाय सिर्फ कमाई में मसरूफ दिखाई दिए। शहरी बिला खौफ बच्चों समेत बाजार पहुँचे, जिन्होंने ना मास्क पहनना मुनासिब समझा और ना ही SOPs पर अमल करना फर्ज। दुकानों के अंदर भी समाजी दूरी के इक़दामात नजर न आए। हुकूमत की जानिब से ताजरों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत है। अदालती हुक्म पर दुकानें हफ्ता और इतवार को भी खुली रहेंगी। ईद के करीब आते ही बाजारों में शहरियों का हुजूम लगा हुआ है। खरीदार हो या दुकानदार, कोई हुकूमती अहकामात मानते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये हम लोगों को ये करना चाहिए कि ये बाहर दुकानों पे बहुत ज्यादा रश लगी हुई है। पहले तो अगर हम घरों से निकले तो एहतियाती तदबीर हमें अपनाना चाहिए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस फासला रखें हम अपने बीच में। मास्क ये चीज़ें ये कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उसने बोले कि भाई दुकानें मतलब अगर आपके पास कस्टमर खड़े होंगे तो उसमें कुछ फ़र्क रखें। ये चीज़ें उस लोग कोई भी ये चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, लॉकडाउन की खुलने के बाद सोशल डिस्टेंस कम हो गया है, मतलब लोग ज़्यादा रश वगैरह भी आ गए, मतलब बाजार छोटा है इसलिए रश ज़्यादा हो जाता है। मतलब मास्क वगैरह इस्तेमाल करना, ग्लव्स इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करना वो तो यहाँ है नहीं। और यहाँ पर लोगों का मेल जोल इस तरह है जिस तरह की आम हालत में जैसे था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि यानी इनको चाहिए कि यानी हम एक दूसरे से मतलब मिलाप न करें। यहाँ हाथ मिलाए जा रहे हैं, गले मिले जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के साथ साथ दीगर बीमारियों के भी वार जारी हैं। आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के सिवा दूसरी बीमारियों से रोजाना 1.5 लाख के करीब अफराद जान से जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वबा फैलने के बाद अब मीडिया में सिर्फ कोरोना और इसकी वजह से हलाकतों का ही ज्यादा जिक्र हो रहा है। ये भी हकीकत है कि 2 साल पहले के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में रोजाना 1.5 लाख अफराद किसी न किसी वजह से मौत के मुंह में जाते हैं और सबसे ज्यादा अमवात इमराज कल्ब की वजह से होती हैं। आदादोशुमार के मुताबिक रोजाना 48,742 अफराद इमराज कल्ब की वजह से अपनी जान से जाते हैं। रोजाना केसेस से मरने वालों की तादाद 26,181 और साइंस की बीमारियों से मरने वालों की तादाद 17,734 है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक रोज में 28,036 अफराद और भारत में 25,270 अफराद जान से जाते हैं। कोरोना से पहले भी अमेरिका में औसतन रोजाना मरने वालों की तादाद 7,564। रूस में होने वाली अमवात दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने 11 मार्च को कोविड-19 को आलमी वबा करार दिया था। इस वबा की वजह से रोजाना मरने वालों की तादाद 272 से लेकर 10,520 तक है। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार हो गई है और इस पर बहस के लिए वजीर-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। इजलास कुछ देर बाद वजीर-आज़म हाउस में मुनक़िद होगा, जिसमें चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी और रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। FIA ने चीनी स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है, जिसपे टैक्सेस की मद में अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है और बताया गया कि शुगर माफिया का ताल्लुक तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ है। पाकिस्तान रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सिस्टम बैठ गया। शहरियों को रिजर्वेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने टिकट बुकिंग के लिए खुसूसी काउंटर बनाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कल सुबह 8 से 5 बजे तक टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। ये मुकम्मल तौर पर SOP पे काम करेगी। चंद घंटे में ये खिड़की खोल देंगे। कल से ये सुबह
8 बजे से 5 बजे तक आप लोग 60% टिकट के साथ की बुकिंग इस खिड़की से भी कर सकेंगे और ऑनलाइन से भी कर सकेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने कोरोना में एहतियात बरतनी है। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया बिलाखिर चल पड़ा है। परदेसियों की बड़ी तादाद अहले खाना के साथ ईद मनाने निकल पड़ी है। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश भी बढ़ रहा है, जबकि शहरी जायद किरायों से परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर के लारी अड्डे पर भी बसें मंजिल की जानब रवाना होने लगी। शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी है। शहर में अड्डों पर चहल पहल है। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान हैं। रावलपिंडी और फैसलाबाद से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरे शहरों को रवा दवा है। अड्डों पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। शहरी घरों को वापसी पर खुश हैं। मुल्तान में भी बस टर्मिनल्स पर गहमा गहमी शुरू हो गई। मुसाफिर आबाई इलाकों को लौटने लगे हैं। जायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। पेशावर से भी दूसरे शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवां दवा है। SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। इस्लामाबाद में फैजाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों का रश है, ताहम किरायों में इजाफे से शहरी परेशान है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन न हो सकी। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल न खोलने का फैसला किया है। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि अवाम की जिंदगी अजीज है। ट्रांसपोर्ट खुलने से कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बहाल हो गया, लेकिन सिंध में ताहाल ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू न की जा सकी, जिसके बायस ईद पर आबाई इलाकों को जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, सिंध में ताहाल ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू न की जा सकी। जी देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी तो लाई गई है और उस नरमी के तहत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ और मुख्तलिफ ऑफिस समेत दीगर जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बसों के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे मालूम करते हैं। आप बताएं कि किस तरह आपका गुजारा हो रहा है। आप ड्राइवर थे और कितने कमाते थे डेली? सर, हमारा एक ट्रिप का हिसाब होता है। हम ट्रिप के हिसाब से, मैं लड़काना चल रहा था, आने जाने का हमें 3000 रुपये मिल जाता था। उसमें हमारा बेहतरीन गुजारा, 24 घंटे ड्यूटी होती थी, 24 घंटे छुट्टी होती थी, तो बेहतरीन हमारा गुजारा चल रहा था। बेहतरीन हिसाब किताब था। अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हमारे तो फाके पड़े हैं, भूख पड़ी हुई है और बहुत तंग हुए पड़े हैं। बिल्कुल अभी ये ईद पर ट्रांसपोर्ट हर जगह खुली है। पंजाब में KPK में खुल गई है। SOPs पे अगले अमल करके उस हिसाब से इनका काम है यहाँ भी ट्रांसपोर्ट खोले। आज बिल्कुल आपने ड्राइवरों की बातें सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर मार्केट्स खोल दिए गए हैं, ट्रेन ऑपरेशन जारी किया गया है और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि उनकी जो रोज़ी रोटी है वो भी चले और शहरियों की मुश्किलातें भी कम हो सकें। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पेशावर में हर कोई ईद की खरीदारी में मसरूफ अमल है। शहर में गरीब और मजदूर तबके के अफराद एक ऐसा बाजार है जहां पे 300 से 400 रुपए में सिले हुए कपड़े भी मिल जाते हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इस आमद में चंद रोज जो है वो बाकी है, जबकि शहरी जो है पेशावर के कुछ बड़े शॉपिंग मॉल्स का जो है वो रुख कर रहे हैं, जबकि ऐसा तबका भी है, एक मजदूर तबका भी है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है खरीदारी कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो बाजार सजाए गए हैं। अगर इन कपड़ों के हवाले से मैं बताता चलूँ तो आम सूट जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रहा है, जबकि यहाँ पे 300 से 400 रुपए तक जो है वो मजदूर तबके के लिए यहाँ पे फरोख्त किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं कहना चाहता हूँ कि ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो ये उन लोगों ने मकसद बनाया हुआ है। गरीब आदमी को चाहिए कि अपने हैसियत के मुताबिक सौदा करे। अभी देखा जाए तो ईद के दिन है, टेलर फारिग भी नहीं होते, एक जोड़े पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए अपने खुद का के खर्च आता है। तो ये बना बनाया सूट इनको यहाँ मिल रहा है, इनके साइज के मुताबिक जो कलर इनको पसंद होता है। इन लोगों को चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाएं और हुकूमत की भी जो है ऐसा चाहिए कि यहाँ के लोग जो ये मजदूरी कर रहे हैं इनको रिलीफ देना चाहिए, इनके साथ सपोर्ट करना चाहिए और हम लोगों को भी जो है इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा ताउन करना चाहिए। हमारे लिए और सबके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो इनको इनकी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो जोड़ा यहाँ से मिल जाता है, जबकि इनकी ईद जो है वो भी गुजर जाती है। जी।
शुक्रिया अवैस महमूद। और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। कराची में सुबह से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। डिफेंस फेस खैबान बुखारी में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। एक 20 साला शख्स भी जख्मी हालत में मिला है और मकतूलिन की शनाख्त 85 साला जावेद और अहलिया 80 साला सलमा के नामों से की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ, बताइएगा 5 अफराद की लाशें मिली हैं आज। जी बिल्कुल, आज शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं, जिनमें डिफेंस के इलाके बुखारी कमर्शियल से सुबह ही बंगले से मियां बीवी की लाश बरामद हुई, जबकि इसके अलावा मलिर मॉडल कॉलोनी से भी एक लाश बरामद हुई और सरजानी के इलाके से एक नदी के अंदर जो है शॉप में बैग था, जिससे एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद की, जिन्हें अस्पताल आबासी शहीद अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मॉडल कॉलोनी से भी एक शख्स की लाश बरामद हुई। इसके अलावा गाजी क्लिप्टन के इलाके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब एक शख्स जो है वो उसकी लाश बरामद हुई है। इन तमाम लाशों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनकी जरूरी कार्रवाई के बाद शनाख्त करने के बाद उनके वर्सा के हवाले की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इन तमाम लाशें मिलने के बाद जो है शहर भर में तकरीबन 5 जो है इन लोगों की तादाद जो है 5 हो गई है, जबकि डिफेंस के इलाके से सुबह सवेरे जो मियां बीवी की लाशें बरामद की गई थी, जिन के हवाले से जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है और उसमें एक जो है बंगले का साबिक मुलाजिम भी हिरासत में लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश हो रही है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10वें कौमियाती मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खुद नोटिस केस में वफाक के इख्तियारात से मुतालिक आइन के आर्टिकल 149 की तशरीह की है। दरखास्त पर नोटिस जारी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की 10वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपकी मरकजी इस्तदा यही है कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कमीशन के मेंबर नहीं हो सकते। इस पर वकील ने जवाब दिया कि ये सिर्फ एक ग्राउंड है कि वुज़रा के अलावा तमाम मेंबर्स के लिए गवर्नर से मुशावरत जरूरी है। आइन के तहत कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में तमाम अरकान की मौजूदगी जरूरी है। सदर ने वज़ीर खजाना की गैर मौजूदगी में मुशीर खजाना को कौमी मालियाती कमीशन के इजलास की सरबराही का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना का ओहदा अपने पास रखा हुआ है, इम्कान है कि वो इजलास में शरीक ही नहीं होंगे। कौमी मालियाती कमीशन को वो फ़राइज़ भी सौंप दिए गए जो इसके दायरा इख्तियार में नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, आपकी ये बातें मफरूजों पर मबनी हैं, इजलास होने दें, कोई गैर आइनी बात हुई तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खुद नोटिस केस में वफाक के इख्तियारात से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 149 की तशरीह की। दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में करेंगे। आप भी वो आर्डर पढ़ कर आएं। ईद की छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर इस केस को सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद गाड़ियां चलाने का ऐलान किया गया था, ताहम बस अड्डों पर भी इक्का दुक्का बड़ी गाड़ियां ही नजर आ रही हैं, जबकि अभी भी ज्यादातर मुसाफिर प्राइवेट गाड़ियों से जाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स ऑनर एसोसिएशन की जानिब से जो कल मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, उसके बाद जो असमतुल्लाह नियाज़ी हैं उनके सदर, उन्होंने ऐलान किया था कि जो बड़ी गाड़ियां हैं अब वो सड़कों पर नजर आएंगी। इस हवाले से हम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और मुसाफिरों से भी हम इस हवाले से बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलाई गई हैं हुकूमत की जानिब से, अब उनको इस हवाले से वो क्या कहेंगे। हमें ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से अब जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, वो बंद थी, वो मतलब खोलने का ऐलान कर दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ननकाना जा रहा हूँ तो रात 9 बजे पता चला है कि ट्रांसपोर्ट खुल गई है, तो बहुत अच्छी बात है। पहले कैरी डब्बे या कारों वाले 3-3 हज़ार 3500 रुपया ले रहे थे, अब हम आसानी से टिकट मिल गई है, 700 रुपया दे के जा रहे हैं।
کرایہ بھی 50 روپیہ کم کیا ہے, پہلے 750 روپیہ لے رہے تھے, ابھی 700 لیا انہوں نے. شکریہ حکومت کا. جی بالکل, جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ کرایہ بھی کم کر دیا گیا ہے. جو پہلے ٹی او آرز طے ہوئے تھے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹرز نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ اب حکومت کے جو ٹی آرز ہیں ان پر گاڑیاں نہیں چلا سکتی, ان میں سب سے زیادہ جو تھا وہ 20% جو کرایہ کم کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹرانسپورٹر موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر, ہمیں یہ بتائیں کہ اب گاڑیاں چلانے کا اعلان کر دیا گیا, اب کیا وہی جو ہے ٹی او آرز رکھے گئے ہیں کہ 20% کم کیا آپ لوگوں نے, یا جو انہوں نے دوسری ہدایات دی تھی کہ ایک سواری چھوڑ کر دوسری سواری بٹھانا, کیا کریں گے؟ جو انہوں نے 20% کم کرایا کہ اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو حکومت نے ٹی آرز بنایا اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں, جتنی گاڑی بھی ہے اسی حساب سے ہم بھیج رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ گاڑی ہمیں یہاں پہ اڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہے, ابھی بھی رات, حالانکہ 12 بجے کے بعد کا اعلان ہوا ہے, ابھی بھی لانگ کا روٹ ہے. رات کو انہوں نے بتایا تھا, کچھ گاڑی ہمارا رات کو آیا جو ہم نے صبح 1-2 بھیجی ہے, 1-2 ابھی بھیجیں گے. باقی جو رات کا گاڑی ہے وہ انشاءاللہ ہمارا پورا ہوگا. پورا ہو گیا. یہ بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد 1-2 گاڑی, کیونکہ لیٹ نائٹ ان کو پتہ چلا تھا, پھر 1-2 گاڑیاں جو انہوں نے دن کے وقت چلائی ہیں لوگ اس پہ جا رہے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ روٹین میں گاڑیاں آ جائیں گی. اڈام حکومت کے اس فیصلے کو وہ سراہ رہے ہیں اور ٹرانسپورٹرز کے اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں کہ اب ان کے جو معاملات ہیں طے ہو گئے اور اب آسانی سے وہ اپنے گھروں کی طرف جا سکیں گے. جی شکریہ اسلم کھوکر. عید کے لیے متحرک غذائی دہشت گرد پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آ گئے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے معروف برانڈز کی جعلی ڈرنکس تیار کرنے والے فیکٹری پر چھاپا, 69 لیٹر جعلی ناقص ڈرنکس طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے فرحان اعجاز سے. فرحان, بتائیے گا اس وقت غذائی دہشت گردی بھی جاری ہے اور کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے کہ بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کی سربراہی میں لاہور کے علاقے شالیمار ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جعلی بوتلیں تیار کرنے والی فیکٹری کو جو ہے وہ اس پر چھاپا مارا گیا, جس کے نتیجے میں 6900 لیٹر جعلی ناقص ڈرنک کو جو ہے وہ طلب کر دیا گیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق 4900 لیٹر معروف برانڈ کی جعلی ڈرنک, 2000 لیٹر سیرپ, فلنگ مشین اور 5 گیس سلنڈر, نیلے ڈرم اور جعلی لیبلز اور ڈھکن بھی جو ہے ضبط کر لیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ مصنوعی فلیورز, کیمیکلز اور ٹیپ واٹر سے مختلف برانڈ کی جعلی جو ہے وہ ڈرنک تیار کی جاتی تھی. صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی بھی ڈرنکس تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق یہ عید کی شیک بھی تیار کی جا رہی تھی جو لاہور اور اس کے مضافات کے علاقوں میں تقسیم ہونی تھی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ ملاوٹ مافیا کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں کی جائے گی. ان کے خلاف جو آپریشن اور ویجیلنس ٹیمیں ماہ مبارک میں ملاوٹ اور جعل ساز مافیا کے خلاف مسلسل کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں. جی بہت شکریہ فرحان اعجاز. گجرانوالہ میں ضلع انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مجموعی طور پر 3 لاکھ سے زائد ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر کے سرکاری گودام میں منتقل کر دی ہے. گجرانوالہ ضلع انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. گوداموں, ڈیروں اور رائس ملز میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی مزید 16,800 بوری گندم برآمد کر لی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف کے مطابق اب تک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن میں 3,40,000 سے زائد بوری گندم قبضے میں لی گئی ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں وزیر آباد, کاموکی اور نوشہرہ میں کی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر وقار حسین, شاہد عباس, حیدر خان سمیت ریونیو افسران نے متعدد گوداموں پر خفیہ اطلاعات پر چھاپے مارے ہیں. برآمد ہونے والی گندم سرکاری گودام میں منتقل کر دی گئی ہے, جبکہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت ناکہ بندی بھی کی گئی ہے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بار پھر رویت ہلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا عید الفطر 24 مئی کو ہوگی. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی پیر کو عید کرنا چاہتی ہے. کل پریس کانفرنس میں تمام ضروری امور سامنے لاؤں گا. پریس کانفرنس میں بتاؤں گا کہ عید 24 مئی کو کیسے بنتی ہے. یہ بھی بتاؤں گا کہ رویت ہلال کمیٹی کیوں پیر کی عید کرنا چاہتے ہیں. سائنس کے جدید دور میں رویت ہلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں. لاہور میں مال روڈ کے ریگل چوک پر واقع لکشمی مینشن میں چھپے نامور شخصیات کے مسکن تھے, جہاں افسانہ نگار سعادت حسن خان منٹو کی بھی رہائش گاہ تھی, جو کہ ایک ایک کر کے موبائل اور الیکٹرانک پلازوں کی نظر ہو رہے ہیں. لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں اجلال حیدر. لاہور میں ریگل چوک پر واقع لکشمی مینشن میں چھپے نامور شخصیات کے مسکن ایک ایک کر کے گرائے جا رہے ہیں اور موبائل اور الیکٹرانک پلازوں کی نظر کیے جا رہے ہیں, جن میں پاکستان اردو کے موسپا شہرۂ آفاق افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی سابقہ رہائش بھی شامل ہے, جس کے آثار اب مٹتے جا رہے ہیں.
लक्ष्मी मेंशन में क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू के लेजेंड अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने अपनी अहलिया और 1 साल बड़ी बेटी निगहत बशीर के साथ आकर इस मेंशन के एक फ्लैट में सकूनत इख्तियार की। बंटवारे के मौजू पर लिखा गया मंटो का शाहकार तारीखी अफसाना टोबा टैक्सिंग भी इसी घर में तख्लीक हुआ। माया नाज खातून मौर्रिख आयशा जलाल के वालिद हामिद जलाल भी मंटो के घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, जो अब टच मोबाइल की दुकानों में कहीं खो चुका है। साबका हुकूमतों में भी कभी किसी ने मंटो के घर को महफूज बनाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया और अब मंटो का घर हाल रोड मोबाइल मार्केट यूनियन का ऑफिस बन चुका है। कभी मुझे लतीफाबाज कहा गया या वो संकी नामाकूल और हुज्जत पसंद, कभी मुझे तरक्की पसंद कहा गया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद, मारूफ मौर्रिख आयशा जलाल, मुमताज इंडियन सियासतदान और साबिक मरकजी वजीर मनी शंकर और मारूफ अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त लक्ष्मी मेंशन में गुजारा था, जहां अब मोबाइल फोन्स की खरीद और फरोख्त की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। ईद के दिन करीब आ चुके हैं। अबीर और आफा सरफराज को इस ईद पर भी अपने शहीद वालिद सरफराज अहमद की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, मगर इन सब के बावजूद भी इन छोटे छोटे बच्चों को अपने वालिद पर बहुत ज्यादा फख्र है कि जिसने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान अपने वतन पर कुर्बान की। शहीद की इस फैमिली पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। 7 साला इफ़ा सरफराज के वालिद सरफराज अहमद 30 जनवरी 2011 को कच्चे के इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान मासूम निहत्ते शहरियों को खतरनाक डाकुओं की फायरिंग से बचाते हुए शहीद हो गए। नन्ही बच्ची इफ़ा सरफराज का कहना है कि मेरे वालिद ने इस मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपने सीने पर गोलियां खाईं और जामे शहादत नोश किया। फ़ख्र है मेरे बाबा ने शहादत पाई, मैं भी बड़ी होके पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगी। अब्बू की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि जब भी रहीम मियां खान का कोई भी शहरी सुकून की नींद सोता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम मेरे वालिद सरफराज अहमद शहीद का भी है। शहीद की बेवा मिसिस सरफराज अहमद का कहना है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और मुझे अपने खावंद की शहादत पर बेइंतहा फ़ख्र है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी एक बेटी और 3 बेटे तमाम के तमाम फोर्सेस को ज्वाइन करें और शहादत का रुतबा हासिल करें। बेवा सरफराज अहमद शहीद, ये वो नाम है जिस पे मेरे ख्याल में इस ज़िले को नहीं बल्कि मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मुझे उनकी बेवा होने पे फ़ख्र है, शहीद के बच्चों की माँ होने पे फ़ख्र है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे तीनों बच्चों में से बल्कि 4 जो हैं वो एयरफोर्स में जाएँ, आर्मी में जाएँ, चाहे इसमें लीड फोर्स में जाएं या पंजाब पुलिस में जाएं। ये फोर्स जो है हमारा फ़ख्र है। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब पुलिस ने भी शहीद की इस फैमिली को तन्हा नहीं छोड़ा। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एहसान ने अपनी तनख्वाह में से ईदी और गिफ्ट इस शहीद की फैमिली के घर पहुंचाए। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क और कौम को जब भी कभी ज़रूरत महसूस हुई है, पंजाब पुलिस हर लम्हा हर वक्त अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रही है। हम हर वक्त अपने शोहदा और उनके अहल खाना के साथ हैं। हम अपने शोहदा को हर वक्त याद रखेंगे। हमारे शोहदा हमारे हीरो हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की शहादत पर बेइंतहा फ़ख्र करती है। ये वो शहीद ही हैं कि जिनकी मरहूने मिन्नत आज हम तमाम शहरी सुकून की नींद सोते हैं। फोर्सेस के शोहदा हमारे मुल्क का ऐसा फ़ख्र है जिन पर जितना भी फ़ख्र किया जाए उतना ही कम है। हमें चाहिए कि इस ईद की खुशियों में हम इन शोहदा के घरानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार। आम की फसल इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। कोरोना वबा के पेश नजर आम की बैनुल-अक़वामी मंडियों में फरोख्त और एक्सपोर्ट हदफ को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से महकमा ज़राअत को खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। आम की फसल इंतहाई अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है और कोरोना वबा की सूरत हाल के पेश नजर एक्सपोर्ट हुजम में इजाफे के लिए हुकूमत को अमली इकदाम उठाने होंगे। इसी सिलसिला में वजीर ज़राअत पंजाब नोमान अहमद लंगड़ियार और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब बासिफ खुर्शीद ने फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत जारी की हैं कि वो आम के बागबानों से रवाबित मजीद बढ़ाएं और इन्हें बागात की बेहतर निगहदाश्त के लिए फनी रहनुमाई के सिलसिला में जारी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाए ताकि आम की पैदावार और क्वालिटी में इजाफा
اضافہ ممکن بنایا جا سکے. لیبر کو آم کی برداشت، پروسیسنگ، گریڈنگ، پیکنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے عمل کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر بارے بھی تربیت فراہم کی جائے. فروٹ فلائی کے تدارک کے لیے فیرامون ٹریپس اور پروٹین ہائیڈرولائزیٹ اور بارشوں کے دوران پانی کے جوڈیشس استعمال سمیت دیگر ضروری نگہداشتی امور بارے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے. دنیا میں کورونا وائرس کی موجودہ وبائی صورتحال کے پیش نظر آم کی ایکسپورٹ کے حجم میں اضافے کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون سے برآمد کنندگان کو درپیش مسائل اور حل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے متعدد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹرز کو سہولیات کی فراہمی سے بین الاقوامی منڈیوں میں زیادہ مقدار میں آم کی سپلائی کے مواقع حاصل ہو سکے اور برآمدی ہدف بآسانی حاصل کیا جا سکے. آم کی کاشت کے تمام اضلاع کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹوں میں تعینات عملے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ آم کے باغبانوں کو کسان پلیٹ فارم پر تمام سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کریں تاکہ مقامی مارکیٹ میں باغبانوں کو مڈل مینوں اور آڑھتیوں کے استحصال سے بچایا جا سکے. احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان. امریکہ کی تمام ریاستیں 2 ماہ بعد جزوی طور پر کھول دی گئی ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق تفصیلی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے محکمے نے تفصیلی ہدایت نامہ جاری کیا ہے. 60 صفحات پر مشتمل دستاویز میں اسکولوں، ریسٹورنٹ اور نقل و حمل سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. گائیڈ لائنز ان کمیونٹیز کی رہنمائی کریں گی جو اپنی معیشت دوبارہ کھول رہی ہیں. وبا کی روک تھام کے لیے سب کو عمل کرنا ہوگا. مختلف امریکی ریاستوں میں اٹھائی گئی پابندیوں میں واضح فرق ہے. میری لینڈ نے لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے اور وہ ساحل پر جا سکتے ہیں. جارجیا کے رہائشی بال کٹوا سکیں گے. امریکہ میں 15,92,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی جبکہ 95,000 سے زائد افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کورونا کا بچاؤ صرف حفاظتی تدابیر سے ہی ممکن ہے. خوابوں کے شوقین افراد کی مشکل روبوٹس نے آسان کر دی. امریکی ریاست ٹیکساس میں روبوٹس نے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. بیت المقدس یروشلم فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے. یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی. یہی ان کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا. مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں. سرزمین مقدس فلسطین و بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت 1236 سال یعنی 12 صدیوں اور 3.5 اشروں سے زائد طویل عرصے تک رہی ہے. بیت المقدس کو عبرانی زبان میں یروشلم کہتے ہیں. یہ نام پورے شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی. اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. 586 قبل مسیح میں شاہ باب البخت نصر میں مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا. 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی. یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پر تعمیر کے لیے یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی. رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے. 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے فسادی یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا. 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے. 624 عیسوی میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا. 639 عیسوی عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا. پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی. یہود و نصارہ کی سازش کے تحت
नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फलस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फलस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। यहूदियों के बकौल 70 की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है, जिसकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत भी कर दी है और अपना सफारतखाना भी यही मुंतकिल करवा रहे हैं। आज मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर दुश्मनान इस्लाम ने न सिर्फ जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, बल्कि इसे एक गैर मुतनाज़ा इलाका करार दिलवा रहे हैं। सच न्यूज की माह सयाम में नेकी और दूसरों की मदद की सच्ची काविश की सभी तारीफ करने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि दूसरों को भी इससे तरगीब मिल रही है। नेकी की टोकरी जो सच टेलीविजन वालों ने ये जो प्रोग्राम किया है, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इन लोगों ने जो अपना दुकानदारों के साथ मिलके वहाँ पे एक टोकरी रखी है, उन पे हमारे जो मौजूद दुकानदार हैं वो जो अच्छी पोस्ट में हैं, वो यहाँ इस टोकरी में कोई ना कोई चीज़ अपनी मदद आप यानी वो डाल देते हैं। हमारे पास ऐसे सफेद पोस्ट भी हैं जिनके पास कोई वो नहीं होती कि मांग सके। ये सच टेलीविजन वालों ने ये एक बहुत बड़ी नेकी की है कि एक सफेद पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक वसीला बन के उनकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी एक इनकलाबी कदम है। बहुत सारे हम जैसे लोग जो कि नेकी खामोशी से करना चाहते हैं ताकि किसी की अना मजरू ना हो और उसका काम भी बन जाए, और हकीकत में नेकी है भी यही कि किसी की अना मजरू ना हो और उसका काम भी बन जाए। बहुत सारे सफ़ेद लोग ऐसे जो कि मांगने में बड़ी अपना दिल पर उनको बोझ आता है, और ख़ासकर इस कोरोना वाले मामले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखे बैठे हुए लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। ये उनके लिए बड़ा एक इनकलाबी कदम है। जैसा कि सच टीवी ने नेकी की टोकरी का एक पैगाम दिया है, जो मुखय्यर हज़ार ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो पहले तो मैं सच टीवी को खराज तहसीन पेश करती कि इतना हसीन इक़दाम करके लोगों को एक पैगाम दिया है जिसमें सफ़ेद पोश तबका जो गरीब तबका है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, उन्होंने इस नेकी की टोकरी में बहुत ज़्यादा उनको माली मदद हो रही है। और मैं इस तरह से चाहती हूँ कि जिस तरह सच टीवी ने ये नेकी की टोकरी के काम को बढ़ाया, गरीब बंदा जो देख रहा है, जो खरीद नहीं सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, वो चाहे वहाँ से जितनी मर्जी तादाद में वहाँ से चीज़ उठा सकता है। इस तरह के इक़दाम हमारे मुल्क में, हमारे सिंध में, हमारे सखर में जो इक़दाम सच टीवी ने किया है, ये इक़दाम बहुत। सच न्यूज से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।